Okay, beta, we are going to start our today's lecture. In last lecture, we studied about some basic things or basic formulas regarding a plus b whole square, a minus whole square, and a square minus b square. But in today's lecture, we have some left. About three questions are left in exercise 6.1, which we have to solve. So in these questions, we use the same formula, but its formation is little different. So if you learn these formulas, that will be very easy for you. And because these formulas, जितने भी आप लोग पढ़ रहे हो बेटा, पढ़ेंगे इस chapter number 6 में, they again we will study them in grade 9. So बेहतर है कि जिन फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ, आप उन फॉर्मेट में इनको अच्छी तरह से याद करें. सर एक्सरसाइज 6.1 के सिर्फ 4 क्वेश्चन है. अभी जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये भी करने हैं. तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे बेटा. अब x plus 1 over x whole square is equal to x square plus 1 over x square plus 2, and another formula for minus x minus 1 over x whole square, which is equal to x square plus 1 over x square minus 2. The basic difference between these two formulas is only the sign. In the formula of plus, we have a plus sign with 2. And in the formula of minus, we have a negative sign with 2. Actually, ये formula वही है जो आप लोगों ने कल सीखा था, a plus b whole square. लेकिन यहाँ उसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज हो गई है, a square plus b square plus 2ab. अब इसमें जो 2ab वाली टर्म है बेटा वो एंड में चली गई है. a square plus कल हमने पढ़ा था ना, a square plus 2ab plus b square. इसमें फॉर्मेशन ये आ गई है कि a square plus b square plus 2ab. ये इसलिए काम किया है बेटा कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपसे अच्छी हो जाएगी. तो प्लस 2ab, जब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, a हमारे पास x है and b हमारे पास 1 over x. So when we multiply this a and b, x is answered by x by 1 over x, so 2 will be left. So that's why I write the formula. आपको लर्न करने में जरा आसानी होगी. x plus 1 over x whole square का फॉर्मूला भी कर लें, x square plus 1 over x square plus 2, और x minus 1 over x whole square का फॉर्मूला x square plus 1 over x square minus 2. बस इतना याद रखना. और जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया वो है टेकिंग कॉमन. If we have an expression in which something is common, just like ka plus kb plus kc, so in all these three terms we have k common. So k taken as common inside outside the bracket, and inside the bracket we will write only those terms which are not common. So from k becomes common, only a will be left. So we will write a in the bracket. From second term, again k is common, we will write plus b, plus again from kc, k is common, we will write only c. So basically we will study the first concept of factorization, that is of taking common. First two formulas are related with exercise 6.1, and the third point is related to your exercise 6.2. So first we shall complete the questions of exercise 6.1. That is exercise 6.1, question number 4, part 1, which says find the value of x square plus 1 over x square when x plus 1 over x is 7. So अभी मैंने आपको फॉर्मूले बेटा दोनों बताए हैं, x plus over x का और x minus 1 over x का. So और यहाँ x plus 1 over x की वैल्यू बदली है और इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे. So we write the formula x plus 1 over x whole square is equal to x square plus 1 over x square. अब हम लोग इसी फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे वैल्यू x plus 1 over x की. अभी जो x plus 1 over x ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि that is 7. तो इसी फॉर्मूले में x plus 1 over x को हटा के हम उसकी जगह लगा देंगे 7
becomes 7 whole square, which is equal to x square plus 1 over x square plus 2. So now open the square of 7, which is 7 7 are 49. Again, the rest of the expression is just as it is. Now we तो will समझ move. नहीं आई। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया है, वो है x के plus 1 over x square, ये हमने फाइंड करना है और वैल्यू दी गई है x plus 1 over x की ये 7 है। लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर है। बेटा हमने फाइंड x स्क्वायर करना है ना, फाइंड x स्क्वायर करना है, लेकिन आपको वैल्यू दी गई, इसकी गिवन दी गई है x plus 1 over x की, x plus 1 over x की। तो जो वैल्यू गिवन दी गई है आपने उसी का फॉर्मूला यूज करना है। We have value x plus 1 over x, that is 7. So we use the formula of x plus 1 over x. अभी मैंने आपको ये फॉर्मूले ऊपर बताया बेटा, ये वाला, ये x plus 1 over x whole square is equal to x square plus 1 over x square plus 2. So if we have given a value of plus, we will use this formula, and if we have a value of negative, we use the second one formula. X square is equal to x square 1 over x square plus सही है। जी सही है। अच्छा बेटा, अब हमने पहले लिखना फॉर्मूला, ये x plus 1 over x whole square is equal to x square plus 1 over x square plus 2. अब इस फॉर्मूले में x plus 1 over x जो दिया गया लेफ्ट साइड पे बेटा, तो इसमें x plus 1 over x को रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू में, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, and that is 7. So we will replace x by 1 over x by 7 in this formula. इस सेकंड लाइन जो फॉर्मूला लिखा हुआ बेटा, इसमें x plus 1 over x को हटाएंगे और सीधा उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे जो कि है 7। तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा जो आपके सामने यहाँ लिखा गया, 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 7 7 are 49। सर ये जहाँ से आपने वैल्यूज पुट किए वहाँ से समझ नहीं आई। कहाँ से समझ नहीं आई, कहाँ से वैल्यू मैंने पुट किया है? पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है, सेकंड फर्स्ट इनमें क्वेश्चन लिखा है बेटा मैंने, समझ आ गया आपको? यस सर। उसके बाद अच्छा अभी जो फॉर्मूला, अब इसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला भी समझ नहीं आया? अरे आसान है फॉर्मूला बेटा, जो जिसको साबित नहीं उसको बात करने दो। जी बेटा, ये फॉर्मूला लिखा ही आपको समझ आ गया? नहीं है सर, बेटा ये सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा आप, दैट इज माय प्रॉब्लम, मैंने ये लेक्चर कंप्लीट करना। ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि वी हैव टू फॉर्मूलाज हियर फॉर एप्लीकेशन, वन इज x plus 1 over x एंड वन इज x minus 1 over x। ये दो फॉर्मूले लिखे गए हैं। अगर आपके पास x plus 1 over x की वैल्यू गिवन है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपके पास x minus 1 over x की वैल्यू गिवन है तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसमें आपको x plus 1 over x की वैल्यू गिवन है 7, आप उस फॉर्मूले को यूज करोगे। पहले वो फॉर्मूला लिखते x plus 1 over x whole square is equal to x plus 1 over x plus 2, तब आप उसमें x plus 1 over x की जगह रिप्लेस करोगे 7, सारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। 7 तो कहाँ गया? हेलो 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे 14, देन आपको x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को अपने इसमें से सेपरेट करना है। इसमें से प्लस 2 को आप यहाँ से मूव करवाएंगे फ्रॉम राइट लेफ्ट। अब जब प्लस 2 आप लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस 2 साइन माइनस 2 बन जाएगा, और u 49 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 47। तो हमारा ऑटोमेटिकली x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का आंसर 47 आ गया। अब इसी तरह अगर आपको x प्लस 1 ओवर x की बजाय आपको अगर वैल्यू दी गई हो x माइनस 1 ओवर x की, तो आप देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए गेन को कर रहे हैं मल्टीप्लाई ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर व्हेन x माइनस 1 ओवर x इज 3। अब यहाँ आपको माइनस की वैल्यू दी गई है तो आप फॉर्मूला भी माइनस का यूज करोगे, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। इस माइनस के फॉर्मूले में फॉर्मूला सारा फॉर्मूला वही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 के साथ बस माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस वाले में यहाँ प्लस 2 आता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस 2 आता है। जब फॉर्मूला लिखेंगे आप ये माइनस का x माइनस 1 ओवर x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, और फिर आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज x माइनस 1 ओवर x।
अब वो 3 है तो आप x माइनस 1 ओवर x को हटा के उसमें 3 लगा दो इसी फॉर्मूले में। बाकी सारा फॉर्मूला है, सिर्फ x माइनस 1 ओवर x 3 लगा दिया। 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद इस फॉर्मूले के राइट साइड से -2 खत्म करने के लिए उसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड को, +2 हो जाएगा और 9 + 2 का आंसर आ जाएगा 11। यूं x² + 1 ओवर x² का आंसर हमारे पास 11 है। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन किया है प्लस के साथ x + 1 ओवर x के साथ, यहाँ हमने प्लस का फॉर्मूला यूज किया है, और एक फॉर्मूला हमने यूज किया है माइनस के साथ, उसमें हम लोग ने माइनस का फॉर्मूला यूज किया है क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू दी गई है x - 1 ओवर x। यहाँ प्लस वैल्यू दी जाएगी बेटा, वहाँ प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ माइनस वैल्यू दी जाएगी वहाँ आप माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो देखिएगा, इसमें आपको x पावर 4 + 1 ओवर x पावर 4 आपको फाइंड करनी है। We have to find the value of x4 + 1 over x4, and we have given x minus 1 over x, the value of x minus 1 over x which is 1. So अब यहाँ जो पावर 4 है वो 2 टाइम्स स्क्वायर लेने से बनेगी। First we will find x² + 1 over x², then by again taking square we will get x4 + 1 over x2. यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला 2 टाइम्स अप्लाई होगा। तो एज अगेन जबकि हमें गिवन है x - 1 ओवर x बेटा, we will use the same formula x - 1 over x whole square which is equal to x² + 1 over x² - 2. So now in this formula we replace x - 1 over x by its value which is given in the question, which is 1. We place here 1 whole square. The formula will become 1 whole square is equal to x² + 1 over x² - 2. The square of 1 is 2. Then we move the -2 from the right side to the left side. जब इस -2 को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, इसका साइन चेंज हो जाएगा बेटा, ये -2 है तो मूव करने से +2 हो जाएगा, और यूँ आपके पास x² + 1 ओवर x की वैल्यू 2 + 1 3 आ जाएगी। लेकिन हम लोगों ने तो पावर फाइंड करनी है 4 की। अब इसके लिए फिर हमें दोबारा से इसका अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा। सो वी विल राइट अगेन स्क्वायरिंग। नाउ अब इसमें हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर x² का, क्योंकि हमें x पावर 4 बनानी है। तो वी विल यूज द फॉर्मूला x² + 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब बेटा जब इसका स्क्वायर लोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला सारा वही रहेगा, सिर्फ पावर जो है वो डबल हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x² का स्क्वायर x पावर 4 + 1 और x² का जब स्क्वायर लोगे तो 1 ओवर x पावर 4 और +2 ही रहेगा, जब क्योंकि असल में फॉर्मूला भी अपने यूज किया है a + b होल स्क्वायर which is equal to a² + b² + 2ab। अब जब a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ x² को 1 ओवर x से करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इतनी डिटेल में ना जाए, अगर आप फॉर्मूला ही बस लर्न कर लें तो ये बहुत होगा। कि अगर if we have x² + 1 over x² and we want to find x4 + 1 over x4, we again square the formula. We use the formula x² + 1 over x², which is equal to x4 + 1 over x4 + 2. So अब इसमें आप x² + 1 over x² की जगह इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, जो कि आपके पास है 3। बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद आप +2 है राइट साइड पे x4 + 1 over x4 के साथ, उसको आप लेफ्ट पे मूव करवाएंगे, तो लेफ्ट पे मूव करवाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा, +2 जो है वो -2 हो जाएगा, तो 9 - 2 आपका आंसर आ जाएगा 7। x4 + 1 over x4 इसका आंसर आ जाएगा 7। जी अब्दुल रहमान साहब। सर नीचे वाला नहीं आया, नीचे वाला यूजिंग फॉर्मूला जो ये समझ नहीं आया बेटा ये फॉर्मूला अगर आपके पास स्क्वायर दिया गया हो और आपको पावर 4 फाइंड करनी हो, तो स्क्वायर को डबल करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, x² + 1 over x² होल स्क्वायर। सर जी सर, ये जो आपने पहले ऊपर एक क्वेश्चन किया उसके बाद ये नीचे भी, ये क्या है, समझ नहीं आई। बेटा फर्स्ट में हम लोगों ने यूज किया है, हमें जो पावर जो क्वेश्चन दिया गया बेटा उसमें x की पावर देखो 1 दी गई है, x - 1 over x दिया गया है। तो अगर हम फर्स्ट उसका स्क्वायर लेंगे तो ये तो कन्वर्ट होगा x² में,
तो फर्स्ट टाइम उसका स्क्वायर लेकर जो उसने अप्लाई किया x माइनस 1 ओवर एक्स में, तो हमारे पास जो आंसर है वो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का है, लेकिन हमें x4 बनानी है। तो x4 बनाने के लिए हमें उस स्क्वायर का दोबारा से पावर 4 लेनी पड़ती है। सो अगेन जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर लेने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप क्या मेरे 3 कहाँ से आया 3? बेटा ये 2 प्लस 1 ऊपर सॉल्व किया है, x के प्लस 1 और x के लेफ्ट पे लिखा हुआ ना 2 प्लस 1, लेकिन हम लोग वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जो अपना आंसर होता है वो राइट साइड पे लिखते हैं। इसलिए मैंने पहले लिखा है x के प्लस 1 ओवर x के, देन मैंने इसका आंसर लिखा है 2 प्लस 1 व्हिच इज 3। तो फिर दोबारा से इसका जो है हम लोगों ने स्क्वायर लिया और उसको 4 कन्वर्ट किया। ये दो का स्क्वायर लिया, दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, पहले स्क्वायर बनाने के लिए, फिर अगला फॉर्मूला उसकी पावर 4 बनाने के लिए। अच्छा, अब ये बेटा फैक्टराइजेशन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हम लोग सीखेंगे बेटा कॉमन लेना। आपने ग्रेड 7 में भी थोड़ी सी ये एक्सरसाइज की है कॉमन लेने की, तो यहाँ भी वही चीज है। तो अब यहाँ देखिएगा जो टाइप मैंने आपको शुरू में बताई थी के ए प्लस के बी प्लस के सी, ये मैंने शुरू में आपको बताया था जब अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ था। तो ये जो थर्ड पार्ट ठीक है इसका, के ए प्लस के सी प्लस के हम लोगों ने कॉमन लिया। तो यही अब हम लोगों ने जो है 6 में सीखना है बेटा। लेट्स नंबर 1 देखिएगा कि वी हैव 2x + 4y + 6c। तो सबसे पहले तो आप कांस्टेंट को देखिए, 2, 4 और 6 ये किस हाईएस्ट टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, यानी इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 2, 4 और 6 का। तो 2, 4 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा। सो यू विल टू टेक एज कॉमन। अब जो जो चीजें कॉमन आती जाएंगी बेटा वो आप लोगों ने नहीं लिखनी है। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन भी अगर आप करें तो भी यही है कि टॉप में जो डेफिनेशन लिखी गई है बेटा वो लिखी गई द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, कि हम लोग एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेकर आते हैं। तो जो चीज कॉमन आती है बेटा वो हम लोग आवाज नहीं आ रही और मुझे भी नहीं आवाज आ रही पहले। बेटा आप लोग आपस में बातें करेंगे तो फिर आवाजें नहीं आएंगी। ऐसे तो मैक्सिमम जो है बेटा जो स्पीड है वो यूज कर। आपका माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए, जिसका माइक अब ऑन हुआ उसको मैंने बेटा क्लास से बाहर निकाल दिया। आप हैंड रेज करें, जब तक हैंड रेज करेंगे तब मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन के लिए। अगर किसी का जिसका माइक ऑन हुआ वो क्लास से बाहर चला जाए। तो एग्जांपल नंबर 1, 2x - 4y + 6c। सो हम लोगों ने देखना है कि 2, 4 और 6 में से तीनों नंबर किस बड़े से बड़े टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो जो आप देख रहे हो कि हमारे पास तो स्मॉलेस्ट नंबर ही 2 है, तो इट मींस कि ये तीनों नंबर्स 2 पर ही डिवाइड हो सकते हैं। वो हम कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन होता है वो ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है और जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो जब 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2x में से बेटा 2 चला गया कॉमन, और जो x है अनकॉमन वो बाकी ब्रैकेट के अंदर चला गया माइनस। अब अगर 4 को लिखूं 2 × 2, 2 2 = 4, तो 2 × 2 या 2 2 = 4, तो जो दो 2 बनेंगे मेरे पास उनमें से एक 2 कॉमन चला जाएगा और एक 2 y के साथ अंदर आ जाएगा। तो y कॉमन नहीं है, y ये भी एज इट इज लिखा जाएगा। प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 × 6, 2 × 3, तो ये जो 2 होगा ये कॉमन चला जाएगा और जो 3 बाकी बचेगा ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये 3z आ जाएगा। और कर दे।
सो हमारे पास आंसर बचेगा 3Z। इसी तरह से जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वो है x स्क्वायर माइनस xy प्लस xz। अब इसमें x स्क्वायर, x और x तीनों टर्म में x कॉमन है, लेकिन अब हमने जब कॉमन लेने की बात करनी है तो फर्स्ट टर्म के पास x स्क्वायर यानी 2x है, जो माइनस सेकेंड टर्म xy है उसमें x एक है, अभी थर्ड x थी उसके पास भी x एक ही है। सो अगर हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो एक और आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट टर्म के पास x पावर 2 मतलब उसके पास 2 रुपीज है, सेकंड टर्म के पास x की पावर 1 है यानी उसके पास 1 रुपया है, थर्ड टर्म है उसमें भी x की पावर 1 है उसके पास भी 1 रुपया है। और तीनों के पास जो कॉमन होगा वो 1 रुपया होगा, क्योंकि 2 रुपये जो है वो सिर्फ फर्स्ट टर्म के पास है, यानी x और 2 सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ है, बाकी के साथ तो नहीं, बाकी के पास सिर्फ पावर 1 है। तो जो तीनों में कॉमन आएगा वो सिर्फ x आएगा। अब देखो क्या करेंगे, x हम लिखेंगे फिर हम का साइन डालेंगे और उसके बाद फर्स्ट टर्म में से x पावर 2 है उसमें से एक x हमने कॉमन लिया और जो एक x बाकी बच गया वो ब्रैकेट के अंदर माइनस अगली टर्म में xy है, x कॉमन चला गया, y बाकी बच गया वो हमने लिखा, प्लस थर्ड टर्म में से xz है, x कॉमन चला गया, जो z बच गया वो हमने बाकी लिया। तो ये हमारा बस सिंपल सिंगल लाइन क्वेश्चन है जिसमें हमने कॉमन लेना सीखा। एग्जांपल 3 में ये दोनों चीजें डिस्कस की गई। सारे आंसर तो साइड से जो वाले फेक ही होते मैंने हैं। आपसे कहा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप जस्ट हैंड रेज करके अपने माइक ऑन नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको से बाहर निकाल दूंगा। मैंने अभी एक बच्ची को रिमूव किया, आप लोगों को मैं रिमूव कर दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन करना है जस्ट रेज योर हैंड्स। नहीं इससे नहीं पढ़ते। So in example number 3, we have 3x square minus 6xy. So अब 3 और 6 में से पहले हम कॉमन लेंगे। 3 is the highest common, that is common between 3 and 6. And from x square and x only x is common. So 3x will becomes common. From first term जो 3x square है उसमें 3 कॉमन चला जाएगा बेटा, और x स्क्वायर में से एक x कॉमन चला जाएगा, जो बाकी एक x बचेगा वो अंदर चला जाएगा ब्रैकेट में। माइनस 3 का टेबल 6 तक पढ़े, 3 2 are 6, तो वैसे भी 6 का जो है वो मल्टीपल 2 और 3 है, 2 3 are 6, तो 3 कॉमन चला गया, 2 बाकी बच गया वो उधर आ गया ब्रैकेट के, x कॉमन चला गया, y बाकी बच गया वो आपने लिख लिया, तो x माइनस y। अच्छी तो बुक की एग्जांपल है जो मैंने सॉल्व की है, आपकी कॉपी बुक पे भी सॉल्व हुई है, ये भी आपने कॉपी पे सॉल्व करनी है। अभी एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 3x minus 9y। सो 3x minus 9y अगर आप उसमें 3 और 9 को पहले आप देखते हैं तो इनके दरमियान 3 ही मैक्सिमम कॉमन आएगा, और x और y दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये कुछ भी कॉमन नहीं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ओनली 3 इज कॉमन। उसके बाद जब कॉमन आप लिखेंगे तो ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, 3 और x में से 3 कॉमन चला गया, बाकी रह गया x माइनस का टेबल 9 तक पढ़ेंगे आप, वैसे भी 9 है उसको लिखा जा सकता है 3 3 are 9, 3 मल्टीप्लाई 3, तो उनमें से एक 3 जो है वो कॉमन चला जाएगा और एक में 3 अनकॉमन वो अंदर आ जाएगा, तो y साथ ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन 2 में बहुत सारा xy प्लस xz, अब इन दोनों टर्म में सिर्फ x कॉमन है, तो जो कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और फिर जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर। पहले आप क्योंकि दोनों में x कॉमन है आप x लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब x y में से देखें x कॉमन चला गया, बाकी रह गया y प्लस x दिया है उसमें x चला गया कॉमन, बाकी रह गया z, तो आंसर हमारे पास आएगा y प्लस z। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 6ab minus 14ac, इससे आपको और ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि देखिएगा 6 और 14 का मैंने राइट साइड के बॉटम पे मैंने एक बकायदा इसका टेबल करके HCF फाइंड किया, तो देखिएगा 6 और 14 में मैंने लिखी है 2 के टेबल पे उसको डिवाइड 2 3 are 6 और 2 7 are 14। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो 6 के मल्टीपल है वो 3 है और जो 4 के मल्टीपल बने हैं वो 14 के जो बने हैं वो 2 और 7 है, तो इसमें जो 2 है वो HCF है, तो देखिएगा मैंने 2 ब्रैकेट के बाहर लिख लिया।
अब दोनों में ए कॉमन है तो मैंने ए कॉमन लिख लिया, अब ब्रैकेट लगा दी। अब देखो 6 का फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 चला गया कॉमन और 3 चला गया अनकॉमन, को साइड पे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। बाकी रह गया माइनस। अब अगर 14 के मल्टीपल देखो बेटा वो 2 और 7 है, तो जो 2 तो कॉमन चला गया और जो 7 है वो अनकॉमन रह गया, वो भी ब्रैकेट के अंदर आ गया। ए कॉमन चला गया और सी बाकी रह गया। तो यूं ये हमारे पास आंसर, अगर 2a ये हमारे पास कॉमन इनटू 3b माइनस 7c। अच्छा, इसके बारे में अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो अपना माइक खोल के अब क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अपने क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वीडियोस वॉच करनी है इसके बाद, और ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट मैंने 4, 5, 6 लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। दैट मींस कि 6.1 की जो लास्ट 3 पार्ट्स उन्हें भी हमने आज किए हैं, वो अपने कॉपी पे आपको लेके जाने हैं और डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन लिखनी है। सर 6.2 का तो सिर्फ एक क्वेश्चन है बेटा, उसके पार्ट है ना, मैंने वही आप समझे कि पार्ट ही आपको सॉल्व करना है। अभी फर्स्ट 3 पार्ट्स किए तो आपने फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करना है। अपना कैमरा ऑन करें अब्दुल रहमान। जी बेटा, इसके सिर्फ 3 पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, ज्यादा पार्ट लेना है। और जो 6.1 है उसके भी जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं बस वही आपने करना है। एक आपने ये जो तीनों क्वेश्चन किए हैं ये वाला क्वेश्चन करना है अपनी कॉपी पे। ये भी मैं आपको जो प्रेजेंटेशन है अभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर कॉपी, देन पार्ट 2 दिस वाला, फिर ये वाला, ये पार्ट करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने ये एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल 1, 2, 3 ये भी आप कॉपी पे ले जाएं तो बेहतर है। और उसके बाद एक्सरसाइज ये 3 क्वेश्चन, बस यही आपका आज का टास्क है। बस मैथ का इतना ज्यादा होमवर्क नहीं है, थोड़ा सा होमवर्क है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा आज।